Hello friends, my name is Chirag. Welcome to Nanda Study Group. So let's we continue our tomorrow chapter, the fundamental unit of life. We studied yesterday that about the cell parts, cytoplasm, nucleus and cell membrane in detail. Today we study about cell organelles. What cell organelles? Do you know about cell organelles? Yes, cell organelles are present in cytoplasm. There are various types of cell organelles like mitochondria, ribosome, lysosome, endoplasmic reticulum. We study one by one these. So let's start with endoplasmic reticulum. So let's study about endoplasmic reticulum. In short form, this is written ER. ER denoted to endoplasmic reticulum. First, we study about what endoplasmic reticulum. Membrane bound organelle. It is a membrane bound organelle. Membrane this one and this two. Membrane bound organelle. Large network of tubes. You seen here large network of tubes here. These are the tubes. Large networking tubes which are presented in endoplasmic reticulum attached to nuclear envelope and other to plasma membrane. You can see this is nucleus, and in back video we see that one outer layer in this that is known as the nuclear envelope. Nucleus have a wall outside it that is known as nuclear envelope, and endoplasmic reticulum is attached to nuclear envelope, and in this side it is attached to plasma membrane or cell membrane, which is the protective layer of सेल की प्रोटेक्टिव लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर की प्रोटेक्टिव लेयर है न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले है ये. लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं. इसमें दो तरह की ट्यूब्स है, एक है रफ एक है स्मूथ. इसी बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स किए गए हैं. टाइप्स ऑफ ER in endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum, RER or SER. RER means rough endoplasmic reticulum और SER means smooth endoplasmic reticulum. अब हम जानते हैं इनका नाम रफ और स्मूथ क्यों रखा. देखिए जैसे आप फिगर में देख रहे हैं रफ, जो इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस. जो राइबोसोम है वे उनके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. देखिए राइबोसोम ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम है. इनके सरफेसेस पे ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके सरफेसेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है. पर ये ट्यूब्स टाइप देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल स्मूथ है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देयर इज एब्सेंस ऑफ राइबोसोम. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होते हैं इसलिए ये रफ है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं इसलिए वो स्मूथ है. हम सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस पे रेशेस टाइप दिखा देते हैं, इसलिए इनको कहते हैं rough and smooth. Now talk about their functions. Now functions of endoplasmic reticulum. Do you know about the functions of endoplasmic reticulum? Now we will study about it. ER, I said ER denoted to endoplasmic reticulum. Now functions of endoplasmic reticulum. You know there are two types of RER and SER. Rough endoplasmic, smooth endoplasmic. Rough endoplasmic synthesize protein. What? Protein. It synthesize protein. Who synthesize protein? RER यानी
rough endoplasmic reticulum, and SER synthesize fat molecules. What? Fat molecules, protein and fat molecules. RS synthesize protein and SER synthesize fat molecules. Now it is rough and it is smooth. This difference you know easily. Our next point is यानी endoplasmic reticulum is a biogeneous. What I said, biogeneous. You heard even this term. You know the meaning of genius. इसका मतलब होता है फोम, मतलब किस चीज का बनना. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. दिस इज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट बाइंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. You understood all? Okay. Written down. I rub the board neck. Yes. Now some more functions of endoplasmic reticulum that are you see the networks. I tell in first that endoplasmic network tubes. There are network tubes. नेटवर्क ट्यूब से हमें पता चल रहा है कि इसका एक साइड था वो अटैच था न्यूक्लियर एनवलप से, और लास्ट वाला जो ये लोअर पोर्शन था वो अटैच था प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. इससे हमें ये पता चलता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. व्हाट इन ट्रांसपोर्टेशन. इन ट्रांसपोर्टेशन कोई भी मटेरियल को साइटोप्लाज्म टू किसमें, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर एनवलप तक ये पहुंचाने में काम करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट हेल्प इन ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. नाउ टू टाइप्स, RER and SER. Rough endoplasmic, smooth. It synthesizes protein and it fats. I told you it is a biogeneous that make the genius. मतलब मैंने आपको बताया था फोम बनाना किसको बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. वो कैसे, आपने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन. दोनों एक ही नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स, लिपिड एंड प्रोटीन की. जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो बनी होती है लिपिड एंड प्रोटीन्स की. अब देखिए प्रोटीन तो आ गया RER से और लिपिड आ गया SER से. मतलब लिपिड ऑल्सो नोन एज फैट्स, पर इनके दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो हम लिपिड की जगह फैट्स नहीं लिख सकते पर फैट्स कह सकते हैं. सो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ना कि फैट और प्रोटीन. क्या, लिपिड और प्रोटीन. और बनाता है लिपिड को SER और प्रोटीन को RER. तो हो गया ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. One more function of smooth endoplasmic reticulum that is that deoxify the poison and drugs. क्या, deoxify the poisons होते हैं और drugs होते हैं, उसका विषहरण. इंग्लिश में हिंदी में डिऑक्सीफाई को क्या कहते हैं, विषहरण करता है कौन, SER. These are the function of endoplasmic reticulum. Now we come to our next cell organelle, that is mitochondria. Let's next topic is mitochondria. Let us study about mitochondria. You heard first we read about about the mitochondria. Membrane bound organelle. Even you see in the diagram. This is the outer membrane and this is inner membrane. This is an organelle, membrane bound, membrane से surrounded and bound है पूरा. There is inner part deeply folded is called cristia. देखिए ये inner part है इसका, ये folds जैसा दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा ऐसा. My drawing is not perfect. ये ऐसा फोल्ड जैसा दिख रहा है, इसलिए डीपली है, इसलिए ये सरफेस एरिया अंदर का माइटोचोंड्रिया के अंदर का इंक्रीज कर देता है, जबकि बाहर कम है इनर से ज्यादा.
यानी इनर में सरफेस एरिया बढ़ा देता है इन फोल्ड्स के कारण, और इन फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टेरिया एज कंपेयर टू आउटर। आगे बढ़ते हैं। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, दीज आर डीएनए एंड दिस राइबोसोम। इसके पास इसके खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। आपको पता है राइबोसोम का क्या 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 काम है? ये करता है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बनाता है। अब राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन लेने की कहीं से जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होता रहता है। अब हम पढ़ते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस। नाउ फंक्शंस। फर्स्ट, पावर हाउस ऑफ द सेल। बट पावर हाउस ऑफ द सेल, मेन पॉइंट हैशटैग लगा देते हैं। क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है किसका? सेल का। इट कंटेन एंजाइम्स, इट कंटेन एंजाइम्स। इसके अंदर इसके एंजाइम्स होते हैं, इसमें खुद के एंजाइम होते हैं। इट डू सेलुलर respiration. But this is also very important point. ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इनको पूरे डिटेल से, एक पॉइंट को पूरे डिटेल से डिफाइन करेंगे। इट गिव एनर्जी टू सेल इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये सेल को एनर्जी देता है। ये पावर हाउस है तो पावर हाउस एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अब ये एनर्जी देता है किसको? सेल को। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है। अब इनको हम डीपली वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पावर हाउस। इट कंटेन, देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन। पहले हम ये पढ़ते हैं सेल रेस्पिरेशन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें होता है फूड स्टफ। क्या होता है? फूड स्टफ। अब इस फूड स्टफ को ऑक्साइड करने के लिए मैं थोड़ा स्पेस क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर होता है फूड स्टफ। इसके अंदर क्या? फूड स्टफ होता है। अब इस फूड स्टफ को ऑक्साइड करने के लिए इसके अंदर एंजाइम तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा था फंक्शन। इट कंटेन एंजाइम। एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं और ये अपनी आउटर से सेल से लेता है O2, यानी इसने बाहर से ली ऑक्सीजन। अब क्या हो गए? एंजाइम, मैं एंजाइम को E से डिनोट करूंगा, एंजाइम प्लस हो गए O2। अब इस फूड को स्टफ करने के लिए, अब इस फूड को ऑक्साइड करने के लिए एंजाइम और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में हम इस फूड को स्टफ करेंगे। किसकी प्रोसेस में? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में। इसकी प्रेजेंस में ही जब एंजाइम और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होगा। किसकी प्रेजेंस जरूरी है? ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इसके होने के बाद हमारे पास आ जाएगा CO2 और वाटर। इस प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर बनेगा। हम अब कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल देंगे, इससे क्या बाहर निकाल देंगे CO2 को। अब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई थी, इस प्रोसेस से हमारी फॉर्म हुई एनर्जी। क्या फॉर्म हुई? एनर्जी। एनर्जी हुई ATP की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। अब इस ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुई और ये सेल को देगी, क्योंकि एक सेल है, सेल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, तो बेसिकली इसे एनर्जी की जरूरत है। तो ये ATP की फॉर्म में इट ऑल्सो यूटिलाइज, द सेल ऑल्सो यूटिलाइज दिस एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो
And one more important point about mitochondria, that ATP is known as the currency of cell. What? Currency of cell. What? Currency of cell. Now, energy used in the form of ATP. Mitochondria also contain enzymes. Yes, ATP is called currency energy. Yes. Now this is all of about mitochondria. आज के लिए बस इतना ही. सो कल हम सेल ऑर्गेनेलेस के और पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो.